Hi everyone, welcome to Terrafic Astro. This is me Pooja Lekha. So today this this video is regarding everybody know 21st June is the solar eclipse. Energy of solar eclipse is quite heavy this time. And what does this bring in our life? What changes we will face when this solar eclipse will pass? What kind of changes it will bring in our life? Where our life will take a turn. So let's see a bit of guidance from cards. From right now, these four piles are meant for four zodiacs. This is for Aries, Taurus, Gemini, and for the Cancer people. And select as per your Sun, Moon, and Venus sign. If it is placed in Aries, Sun, Moon, your Lagna, or your Venus is placed in Aries, Taurus, Gemini, or in Cancer, then this reading is for you guys. So let's start with Aries first. Four of Cups, Hermit, and your guidance is true to yourself and summer. Okay, let's start. Four of Cups and Hermit card says कि it will bring little isolation, little boredom in your life. This card, you are upset with some emotions where you have put lot of energy in building those emotions. Maybe in some relations you have put so much energy. Maybe at some career point you have put lot of efforts where you want to grow, and you were expecting a lot of growth, but maybe you were not happy, you were not satisfied, and now you are so much into you are moving inward. Why and when we are supposed to move inward when we don't get happy, we don't get satisfied, not contented with the surrounding things. And so this is the time when you are into yourself, right? You are thinking and thinking, and you are not looking that there is coming a new offer in your life, but you are not interested in it, you are not showing any interest. And you moved so much, uh, you were so upset, so with these circumstances, that you made yourself little isolated from the society. You are not into everyone, you isolated your society. But try to understand the thing that something is happening, that is happening maybe for good. Accept the offer which is coming on your way. Come out of your isolation. Don't get into it so much, right? And your advice card suggests, say true to yourself, don't compromise or water down your ideas. Listen and trust your inner voice. Whatever your inner voice is guiding you, whatever the idea is in your mind, apply it, right? Come out of your isolation. Don't feel upset. Whatever has done, it will bring something good from you. And don't need not to compromise your ideas. If you know your idea is good, apply it, use it, implement it. Listen to your inner voice. Your gut voice is suggesting you so many things this time. And summer, bask in joy, and like definitely good and happy time is waiting for you. uh, accept the offer, or whatever the idea you are having in your mind right now, and your gut feel is saying ki this will bring something new and something good for you. Apply it, use it, whether it is at your work front or in your relationship. Maybe you are upset with some relationship and you isolated yourself from the society, being you are very upset, very depressed. Come out of it, right? Something new is there, definitely is there, and that will bring joy and happiness in your life surely. But you have to do, uh,
you have to work on yourself. You have to come out, you have to step out. Whatever the situation you are in right now, step out of it, right? That's the guidance for you. Maybe this solar eclipse, after this, you will get so much courage. Okay, your energies will settle and you will get so much of courage to come out of that isolation. That will be very good for you. Come out of it. Okay, now next for let's see for Taurus. Wow, 4 wands and 2 pentacles. Express your inner truth. And winter, take care of your needs. Okay, so much stability, so much happiness, so much good news is coming at your front. Now you are feeling very stable, and maybe stable in your relationship, and you want to get married with someone whom and now you are feeling very stability, and you want to give your relationship, uh, now you tie the knot. Okay, now you want to get into the relationship, or maybe you will get some good news from your home or some relatives or somewhere, or maybe you are shifting to your new place. Maybe you will get the possession, or maybe you are changing your place, but something very good is happening. That celebration is there. And 2 of pentacles, new opportunities, definitely new opportunities are there, and you are into it. You are handling so many responsibilities, maybe at your work front, maybe this new thing that is happening, and you are taking care at the same time your business, your work. You are juggling somewhere in 2 to 3 things, maybe 2 3 projects at your office or at your work front, or home responsibility and work responsibility, but new opportunities, new happiness, new things are happening. And very both the card says stability, earthy things. And whatever is coming on your way, it will stay longer. It will give you stability at the financial front and at the emotional front, both. And your guidance card says express your inner truth. Your creativity, your creative work shines brighter when it reflects your genuine feelings and thought. It's same key. Maybe your creativity will bring lot of happiness. Your creativity will be recognized. Your creativity will be appreciated, and be it will bring brightness, it will bring happiness, right? And this card says ki winter, take care of your needs. If you whatever you have felt in the past, maybe you were felt so much loneliness, aloofness at your in the past, but now lot of happiness is there. Cherish this, enjoy this, take care of your needs, take care of your things. Winter, till the time winter, your things will settle, and you will get lot of new things, lot of happiness, lot of brightness, right? The solar eclipse energy will get settled till winters, and you will see lot of things are growing, give stability at your work front, at your home front. So Taurus, wait till winter. Lot of new things are happening around. Okay, so let's see for Gemini people. 3 wands and wow, magician and blocks lifted. Just see beyond the current situation. Okay. Uh, some new things, new opportunities are coming, and you are waiting for them. Maybe you have applied somewhere and you are waiting for the interview call or some appointments over there, or maybe you are waiting for the new projects, new business opportunities. Maybe you are waiting for the new relationship to get flourish, right? And magician card says ki only waiting is not the thing. You have to do some action over it. Now you have blessed with so many things. You can whatever you want, manifest it. You have the power to manifest your things. Whatever you desire for your emotional things, work on it. It will definitely come as per what you want. Okay,
you have everything. You have only the thing you need ki what are your desires is just throw it in the universe, just put it to the god, and whatever you are demanding right now, it will definitely uh, come into action. Okay, you can manifest it, but you have to come out of it. You have to do actions. It's not like you are sitting and you are asking everything and everything is get fulfilled. You have to make some actions. Okay, and your guidance card says ki blocks lifted, previous obstacle came from fear, they are now lifted away. Okay, whatever the fear you have faced, maybe failures you have failures maybe you have faced in your past, and but now you are ready to enter in something new. Okay, now you want, now you emerge yourself in various things where, and whatever the blocks you have faced, whatever the obstacle you have faced, now it has lifted. After solar eclipse, now so many things will get cleared up. Your blocks will clear up, your obstacles will clear up, and you will see the new opportunities, new skies there for you to flourish, and uh, see beyond the current situation. Beautiful card. It says ki whatever the fear, whatever the disappointments and you are facing right now maybe, or see beyond that. See, it's not the end of your life. It is after this eclipse or whatever it is, after this period be uh, you will be come out of this phase. You will be a newer person, because when we do a lot of struggle in our life, definitely we learn so many things, and when we apply those learnings in our life, so it's sure ki success is there. And your these two cards says ki now you have come out of your comfort zone, look for the new opportunities, manifest those desires, and you will get everything what you want. Okay, so see beyond your current situation. Whatever the current situation now is, it will be over very soon. So Gemini, some good time is coming for you. And now this is for Cancer people. Temperance. Wow, 6 of Wands and new projects and snake. Oh, beautiful, I can see. Okay, Cancer people, Temperance says ki after eclipse, whatever you have passed, it will bring lot of patience in you. It will bring balance in you. Now you can balance your things. You can balance your emotions. Now you can balance your anger. Now you can balance. Now you are a very balanced and very healed person. 6 of Wands says ki you will get lot of recognition. Whatever the new projects, if I'll relate all the 4 cards, says something new is coming. You are coming out of as a new person. You know how to channel your energies now. You cannot handle all those things. Now you are a very balanced person. Your things will be recognized by the people. And the new project, like a newborn baby, your actions are growing your idea into a reality. Maybe you have started working on something new project, some new idea you started working on, that will bring lot of recognition, because ki you snake say shed the old skin. Because whatever you were before, you left your identity, you left your personality, and now you are emerging as a new person. A snake, what snake does, after a few days it shed off its skin and something new has come. Same thing is happening with you. Now you are shedding your old things. Okay, now you are a balanced person. Your talent is recognized by everyone. You will get appreciation, recognition. People will start following you. Maybe you have started something new that will bring lot of appreciation, recognition. Okay, people will start accepting you. Now they know ki what are the talents, and now you are coming to show them your talents. It will bring lot of victory, happiness to you. Beautiful reading for Cancer. You are coming out as a completely new, completely different person. This is a beautiful reading for Cancer people.
Okay, people, please don't forget to subscribe my channel. Do comment that this reading resonate to you, what the message you get from this reading. Okay, follow me on Instagram with the same name, Tarofi Castro. For personal consultation, you can email me, you can message me at Insta account. So this is all for today. Hope you enjoyed this reading. Thank you. Namaste everyone. आज की रीडिंग हमारी 4 जोड़े मेष, ये वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए है ये। और ये हमने जो रीडिंग करी है आज, ये है सोलर इक्लिप्स। ये जो सूर्य ग्रहण है, ये हमारे लिए क्या चेंजेस लेकर आने वाला है, तो उससे रिलेटेड हमारी लाइफ के अंदर हमें क्या गाइडेंस लेनी चाहिए, हमें क्या एडवाइस करनी चाहिए, हमें कहाँ कहाँ पर अगर ज़रूरत है तो हमें कहाँ चेंजेस करने चाहिए और कहाँ पर हम अपने एफर्ट्स डाल सकते हैं ताकि हम इस इक्लिप्स का बेहतर फ़ायदा ले सकें, राइट। तो अभी हम सबसे पहले एरीज के लिए स्टार्ट करते हैं। ये भी 4 ज़ोडिएक है एरीज, यानी कि मेष राशि वालों के लिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इनके लिए सबसे पहला कार्ड है 4 कप्स, हर्मिट एनर्जी है, ट्रू टू योर सेल्फ एंड समर्स। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले है 4 ऑफ कप्स एंड हर्मिट। ये कार्ड ये कहता है कि पास्ट में शायद आपने अपने को कहीं हर्ट किया है, खुद को हर्ट फील कराया है। मे बी आपने अपने बहुत एफर्ट्स डाले हैं अपनी जॉब के अंदर, अपने किसी रिलेशनशिप के अंदर, बट मे बी आपको आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे कुछ मिला नहीं है बहुत ज़्यादा, तो आप जिसकी वजह से बहुत अपसेट हो गए। आपने अपने आप को सोसाइटी से आइसोलेट भी कर लिया, आप अपने अंदर ही सोच में डूबते चले गए कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। हम बहुत ज़्यादा सोच ले लेते हैं ना, और या तो कई बार हम अपने आप को बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी ले जाते हैं। ठीक है, अगर आप अपने आप को स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जा रहे हो, डेफिनेटली यू आर गेनिंग समथिंग, बट बहुत ज़्यादा सोचना अपने लिए अच्छा नहीं होता है। तो अब आपके लिए क्या गाइडेंस है? एक तो है कि आपको अपने आप को उस आइसोलेशन से, उस अपसेट वाले मूड से बाहर निकालना है। ठीक है, कोई ना कोई ऑफ़र आपकी तरफ आ रही है, आपको उसको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि वो ऑफ़र अब आपके अच्छे के लिए आ रही है। मे बी ये आपको एक जो भी पुराने अपसेटनेस या सैडनेस थी उससे बाहर निकालने में बहुत हेल्प करेगी। और हटिंग तो आप वैसे नहीं रह सकते हो ना, तो आपको तो उसमें से बाहर आना भी चाहिए। और जो आपने यहाँ पर मे बी आपने कुछ स्पिरिचुअली अपने आप को कुछ गेन करा, या आपने कुछ मेडिटेशंस लर्न करी हैं, और आपके पास कोई भी नया आइडिया है, या आपकी कोई भी हमारे को कई बार गट फीलिंग आती है ना, जैसे कि बोलते हैं कि मुझे तो इंट्यूटिवली ये मैसेज आया। ठीक है, तो उसको आपको सुनना है, आपको उसको फॉलो करना है, अपने आइडियाज़ को अप्लाई करना है, बिकॉज ये जो टाइम है इसको एक्शन में लेकर आने का टाइम है। ठीक है, अब ऐसे नहीं रहना है। अभी तक बहुत अकेले बैठ लिए, बहुत सोच लिया जिस भी चीज़ के बारे में था, अभी वो इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, उतना सोचना भी नहीं है, और अपने आप को किसी ना किसी काम में लगाना है। और डेफिनेटली आपके पास कुछ बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि मेरे आगे गाइडेंस कार्ड यही कह रहे हैं, से ट्रू टू योर सेल्फ। अपने आइडियाज़ को लेके कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, और अपने इनर वॉइस को सुनना है, ट्रस्ट के साथ चलना है, ईमानदारी के साथ चलना है। ठीक है, और ये चीज़ आपको आगे आने वाले टाइम में बहुत सक्सेस भी दिलवाएगी। तो आगे का कार्ड है कि समर बास्क इन जॉय एंड लाइट। समर आगे ही आपको हैप्पीनेस, जॉय, फुलफिलमेंट डेफिनेटली दिलवाने वाली है। आने वाली समर्स है, मे बी ये टाइम तो शायद नहीं, बट मे बी 1 साल के अंदर आपको काफ़ी अच्छा ये चीज़ रिज़ल्ट आना स्टार्ट होगा। एक्लिप्स की एनर्जी से रिज़ल्ट ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे को कम से कम भी 6 महीने लगते हैं इसके बहुत सारी प्रोग्रेस और रिज़ल्ट्स को देखने के लिए। ठीक है, तो वेट करिए, जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको ग्रैब करिए, उसको एंजॉय करिए, उसके अंदर अपना 100% डालिए, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके एरीज, सो नेक्स्ट इज फॉर टॉरस। ओके, ये विंटर का कार्ड है उनके पास समर था, इनके पास विंटर है। वाह, ओके। अब 4 ऑफ वॉन्ड्स, 2 पेंटिकल्स, ये 2 कार्ड्स ये कहते हैं कि ये दोनों कार्ड्स मेरे अर्थ साइन के हैं, तो ये दोनों कार्ड मुझे स्टेबिलिटी बताते हैं सबसे पहले।
तो बहुत सारी स्टेबिलिटी है आने वाली है आपकी लाइफ के अंदर, कुछ गुड न्यूज़ आने वाली है। मे बी आपने डिसाइड किया है कि अब बहुत हो गया किसी भी रिलेशनशिप को अगर आप फॉलो कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अब आप शादी करना चाहते हैं, या कोई ना कोई स्टेबिलिटी है लाइफ के अंदर, या आपने कुछ ऐसी अचीव किया है, कुछ आपको या तो कुछ बहुत अच्छा इंक्रीमेंट है, या कुछ भी बहुत अच्छी एक्नॉलेजमेंट, या कुछ भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है जहाँ से अब आपने अपना मे बी अपने आप को स्टेबल फील कर रहे हैं, बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं, स्टेबल फील कर रहे हैं। यानी कि ये क्लिप्स के बाद आपको काफ़ी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ के अंदर आने वाली है। और मे भी हो सकता है कि आपको कोई आपके घर की पोजीशन, या आप अपना घर शिफ्ट करने वाले हैं, या कोई घर के अंदर कोई सेरेमनी की न्यूज़ आने वाली है। ऑन द होल आपके पास बहुत हैप्पी टाइम आने वाला है, जो आपको बहुत स्टेबल, ग्राउंडेड, बहुत ज़्यादा अच्छा फील कराएगा। ये कार्ड कहता है कि आपको मे बी कि ऑफिस के अंदर या कहीं पर भी आप 2-3 जगह बहुत ज़्यादा बिजी हैं इस टाइम पे, ठीक है। आपने बहुत सारी चीज़ों को संभाल के रखा हुआ है, और आप उन दोनों के अंदर बहुत अच्छे से बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो। मे बी ऑफिस के अंदर 2-3 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें आप बहुत इंटरेस्टेडली पार्टिसिपेट कर रहे हो, दोनों को बहुत अच्छे ढंग से करने की कोशिश कर रहे हो, एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो। और ठीक है, जितना ज़्यादा आप उसके अंदर बैलेंस बना सकते हो, बट 100% जब हमें डालना होता है तो हम हमेशा एक ही चीज़ को पकड़ने की कोशिश करते हैं। हमारे पास 2 प्रोजेक्ट्स है, तो कई बार हम उस दोनों प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत अच्छे से एफर्ट्स नहीं डाल पाते हैं, तो हमारे को क्या होता है कि एक ही चीज़ करें और हम उसमें 100% डालें, तो शायद अच्छा रहता है। तो एक्सप्रेस योर इनर ट्रूथ, योर क्रिएटिव वर्क shines brightest when it reflects your genuine feelings and thought. डेफिनेटली योर क्रिएटिव वर्क बहुत शाइन हो रहा है, आपको आपके वर्क के लिए आपको बहुत अप्रिसिएशन मिलने वाली है। आपके काम को आपके काम को बहुत अप्रिशिएट किया जाएगा। एंड विंटर कार्ड, टेक केयर ऑफ़ योर नीड्स। मे बी पहले बहुत लॉन्ग टाइम स्पेंड किया आपने, या बहुत डिफ़िकल्ट टाइम भी हो सकता है आपने स्पेंड किया हो, बट अभी एक तो आपको अपनी नीड्स, अपनी हेल्थ और उन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और ये विंटर सीज़न आपके लिए कुछ, ये जो सारी हैप्पीनेस है, डेफिनेटली जब भी हमारा ये वाला जो सूर्य ग्रहण है, एकदम से रिजल्ट तो नहीं देने वाला। तो जो भी चीज़ें हैं ये आपकी सेटल होते होते कम से कम 6 महीने लगेंगे। तो मे बी विंटर, ये कार्ड कह रहा है कि विंटर, तो डेफिनेटली विंटर तक कुछ गुड न्यूज़ आपकी, मे बी आप कुछ शादी की प्लानिंग कर रहे हैं, तो विंटर्स तक तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें जो कि विंटर्स तक ही आ पाएंगी। तो आपका काम आपका अप्रिशिएट होने वाला है, आपको स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा फील होने वाली है। मे बी शादी करने वाले हैं, किसी की शादी की न्यूज़, कोई भी सेरेमनी की न्यूज़ हो सकती है आपकी। आप हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह पर अपना घर चेंज कर रहे हो, तो समथिंग गुड इज़ कमिंग, बट वेट टिल विंटर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद जेमिनी पीपल, मिथुन राशि वालों के लिए स्टार्ट करते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन, ब्लॉक्स लिफ्टेड, एंड सी कहता है बियॉन्ड दी करंट सिचुएशन। मे बी करंट सिचुएशन आपकी अभी थोड़ी सी बहुत, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि काफ़ी स्ट्रेसफुल है इस टाइम पे, या पास्ट में आपने काफ़ी स्ट्रेसफुल टाइम पास किया है। और मे बी कुछ बहुत फियर्स रहे हैं जॉब से रिलेटेड या किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड, दिमाग में बहुत एंग्जाइटी फील हो रही है। तो अभी नाउ दिस इज़ द, अभी क्या है कि आप अपने उस पैटर्न से आपने सोचा है कि अब आप उस बाहर आने वाले हो। अब आप अपने नए आइडियाज़ पे वर्क करना चाहते हो, नई अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हो कि आपकी जॉब से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, आपकी बिजनेस से, इफ़ यू आर इन बिजनेस देन उससे रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। अब आपको उसको एक्सप्लोर करना है, अपने आप को उसके अंदर डालना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फियर और एंग्जाइटी का टाइम स्पेंड कर लिया। डेफिनेटली अब उससे बाहर भी आना है, और ये टाइम है उससे बाहर आने का। अगर अभी तक नहीं सोचा है तो कोई ना कोई जॉब के लिए अप्लाई करिए, कोई ना कोई बिजनेस प्लानिंग्स है तो उसको अप्लाई करिए, क्योंकि ये टाइम है आपका, और ये टाइम आपको सपोर्ट कर रहा है। आपके पास बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं जिसको आप मैनिफेस्ट करो, अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करो, और आपको डेफिनेटली रिजल्ट भी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है, बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं। आप यूनिवर्स में अपनी डिज़ायर डालिए, वो डेफिनेटली पूरी होने वाली है।
ठीक है। एंड योर गाइडेंस कार्ड से इसकी ब्लॉक्स लिफ्टेड, सी योर ब्लॉक्स, आपके ब्लॉक्स हट रहे हैं, आपके ऑब्स्टेकल्स हट रही हैं, जो भी दिक्कतें आपने अभी तक फेस करी हैं वो सब हटने वाली हैं धीरे धीरे से। ऐसा नहीं है कि एक दिन में हट जाएंगी, नहीं, इसको टाइम लगता है, 3 महीने 6 महीने लगेगा, लेकिन आपको थोड़े दिनों के अंदर, आपको 1 महीने के अंदर ये समझ में आने लगेगा कि चीज़ें क्लियर हो रही हैं। ठीक है, तो आप अपने किसी भी आइडिया के ऊपर काम करिए, आप अपने फियर को और जो भी परेशानियां पुराने पीछे टाइम पे आई हैं उसको छोड़ दो। ठीक है, उसको छोड़ दो, अभी वो ख़त्म होने का टाइम हो चुका है, उसको पकड़ कर बैठने का कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन, सी दिस कार्ड इज अगेन गाइडिंग यू, फिर से आपको सेम चीज़ बता रहा है कि अपनी करंट सिचुएशन, आज की सिचुएशन अगर बहुत दिमाग को टेंशन दे रही है, डरा रही है, तो उसके बियॉन्ड देखना है। ठीक है, उसके बियॉन्ड जाना है, क्योंकि अब वो ख़त्म होने का, ब्लॉक्स लिफ्ट ख़त्म होने का टाइम हो चुका है। तो अभी उसको सोचने का ज़्यादा टाइम नहीं है, अपने आइडियाज़ लगाओ, नया बिजनेस चलाओ, नया काम करो, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखो, बहुत कुछ है सिस्टम के अंदर। ठीक है जेमिनी पीपल, प्लीज़ कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, उस डर वाली सिचुएशन से बाहर निकलो जो इतने टाइम से झेली हुई थी। अभी वो ख़त्म होने का टाइम है, अभी कुछ काम करने का टाइम है, अभी एक्टिव होने का टाइम है, एक्शन लेने का टाइम है, अपने आइडियाज़ को लगाने का टाइम है। ठीक है, अब देखते हैं कैंसर पीपल के लिए। टेम्परेंस, 6 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, कैंसर पीपल के लिए तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है मुझे। कैंसर पीपल तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पूरे के पूरे बदलने वाले हैं। इट ब्रिंग्स पेशेंस इन योर लाइफ, आपको बैलेंस कर देगा। अब इसका क्या मतलब है, पेशेंस बढ़ जाएगी आपकी, क्योंकि आपने जो अपनी लाइफ में जितनी भी स्ट्रगल करनी थी कर ली, लेकिन उस स्ट्रगल से आपने अपने अंदर जो एक बैलेंस क्रिएट किया है। ठीक है, एक बैलेंस का मतलब होता है कि अब मुझे अपने आप को संभालना आता है। ठीक है, बैलेंस का मतलब ये होता है, बैलेंस का मतलब है कि जो इमोशनल मूड स्विंग्स जो बहुत ज़्यादा फेस किए होंगे, अभी उसको कंट्रोल करना आता है। क्योंकि मूड स्विंग्स जब होते हैं तो आपको कुछ समझ नहीं आता, लाइफ में कुछ क्लैरिटी नहीं होती है। कि सेकंड में होता है गुस्सा आ जाता है, सेकंड में मूड अपसेट हो जाता है, सेकंड में हर्ट हो जाता है। ऐसे तो लाइफ में कुछ क्लैरिटी नहीं है ना, कुछ समझ में ही नहीं आता, सारे टाइम ही आप अपने दिमाग के अंदर स्ट्रेस लेकर बैठे हो। अब आपने इतने टाइम से जो भी लर्न किया है, जो भी स्ट्रगल करी है, उससे अब आपको अपने आप को बैलेंस करना आ गया, अपने आप को स्टेबल करना आ गया, पेशेंस बढ़ गई है लाइफ के अंदर। ठीक है, तो ये इंसान की क्वालिटीज़ होती हैं जो हर एक इंसान क्रेव कर रहा होता है, इसके पीछे भाग रहा होता है, बट उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो आप अपनी जो ये क्वालिटीज़ है, जो भी नया टैलेंट है, उससे जो एक नया कैंसर पीपल निकल कर आ रहा है आपके अंदर से, उसको अब देखो लोग फॉलो कर रहे हैं, उसको रिकग्निशन मिल रही है, क्योंकि उसने अब अपना टैलेंट दुनिया को दिखाना शुरू कर दिया है। उसका दिखाना क्या, अगर आप पेशेंट हो जाते हो, आपके इमोशंस बैलेंस हो जाते हैं, तो एक कामनेस आनी शुरू हो जाती है जो आपकी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट कर रही होती है। ठीक है, आपकी शक्ल से ही पता चल जाता है कि आप कितने शांत स्थिर इंसान हो चुकी हो। तो ये बहुत ज़रूरी है, लोगों ने ना अब आपको पहचानना शुरू कर दिया है। और ये कार्ड ये कहते हैं न्यू प्रोजेक्ट्स, या मे बी आपने कोई नया प्रोजेक्ट शुरू किया, कोई नया आइडिया लगाया है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, या कोई नए प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया है, तो वो जो नया प्रोजेक्ट है वो आपको रिकग्निशन दिला रहा है। ठीक है, वो आपने जो उसके ऊपर अपनी मेहनत करी है, जो आपने अपनी क्रिएटिविटी, अपने नए आइडियाज़, क्योंकि रिकग्निशन उस इंसान को मिलती है जो दूसरों से हट के चलता है। ठीक है, भीड़ में अगर आप चलोगे तो किसने रिकॉग्नाइज किया, तो जो नया आइडिया है, जो नई एक्शन है, वो जो अब आपने जो ग्रो हो रहे हैं, वो जो उसको जो आपने रियलिटी में लाना शुरू किया है, ठीक है, उसको जो दुनिया को दिखाना शुरू किया है, उससे आपको रिकग्निशन मिल रही है, दुनिया फॉलो कर रही है, आपकी बात को सुनना चाह रही है। ठीक है, एंड ये कार्ड क्या कहता है, स्नेक शेड्यूल्ड स्किन, वाह, मतलब तभी मैंने कहा कि कैंसर लोग जो है, कर्क राशि वाले लोग, एक नया इंसान निकल कर सामने आ रहा है, क्योंकि स्नेक क्या करता है, अपनी पुरानी स्किन उतार देता है और उसकी एक नई स्किन आ जाती है। ठीक है, अब नई स्किन से वो जाना जाता है, पुरानी स्किन तो उसने फेंक दी। तो यहाँ पर जो कैंसर पीपल के लोग हैं, जो कर्क राशि वाले हैं, उन्होंने जितनी भी स्ट्रगल अपनी पीछे अपनी लाइफ में करी है, अभी वो उनकी पर्सनालिटी में
काफ़ी चेंज आ गया है, ठीक है। एक ऊपर से नया प्रोजेक्ट उन्होंने कुछ शुरू किया है या करने वाले हैं, उसके अंदर आपको बहुत रिकग्निशन मिल रहा है। तो कर्क राशि वालों के लिए तो बहुत सारे पर्सनालिटी में चेंजेस हैं, ठीक है। आप ओवरऑल आपकी काफ़ी बैलेंस्ड एनर्जीज आ रही है, रिकग्निशन आ रही है। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से इक्लिप्स कर्क राशि वालों के लिए बहुत कुछ अच्छा लेकर आने वाला है। सो ऑल द बेस्ट कर्क राशि वालों के लिए, ठीक है। तो ये चेंजेस आप अगले 6 महीने के अंदर अपने अंदर और अपने आसपास बहुत फील करोगे। अच्छा लगे तो शेयर कमेंट ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए और मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, टेरोफिक एस्ट्रो के नाम से ही ईमेल कर सकते हो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।